like a Hellcat. Good morning student, welcome to your SST class. Today I am going to explain slave dynasty. Why this dynasty was known as the slave dynasty? The reason was Qutbuddin Aibak was originally Muhammad Ghori's slave. Hence the dynasty established by him is called the slave or dynasty. Okay. The first king of the slave dynasty, as you know, Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak established his capital first at Lahore and later of Delhi. He was a great general and able administrator. He was just as generous and was given the title of लक बादशाह. कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही अच्छा राजा था और लोग उसे लक बादशाह कहते थे बिकॉज ही वॉज वेरी जनरस. ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवैत उल इस्लाम mosque at Delhi. He also laid the foundation of the Qutub Minar. Okay. Qutbuddin Aibak died in Lahore in 1210 CE while playing polo. पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई थी और उसने दो बिल्डिंग्स बनाई थी. फर्स्ट इज़ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क और सेकेंड इज़ कुतुब मीनार. The second ruler was Iltutmish. Qutbuddin Aibak, the son-in-law Iltutmish, ascended the throne in 1210. After his death, Iltutmish ascended the throne. He recovered most of the territories that had broken away from the Sultan after Qutbuddin's death in 1210. He also suppressed rebellion. Iltutmish was a slave and later son-in-law of Qutbuddin Aibak. He was very competent ruler and regarded as the real founder of the Delhi Sultanate. अगर रियल फाउंडर की बात की जाए तो इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत. आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम. आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एंड ब्रॉट द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, shortly after Iltutmish's death, his able daughter Razia ascended the throne. The scholar Minhaj-us-Siraj acknowledges Razia's ability as a ruler, but he also wrote that her abilities were useless as raising a woman to the throne was against the custom. Razia Sultan has a unique destination of being the only woman to occupy the throne of Delhi. Razia Sultan was the first lady Sultan of the Delhi. She was brave, wise and great warrior. Though she had a very short reign, she succeeded in setting up complete law and order in her empire. She encouraged trade, established schools and public libraries. However, Razia's faced many problems. She dressed up in masculine attire and sat on the throne without a veil. This was against Muslim rulers. जो रजिया सुल्तान थी वो मुस्लिम जो मेल होते थे उनके कपड़े पहनती थी और वो पर्दा नहीं करती थी जो कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ था. दैट्स वाई जो मुस्लिम थे वो अगेंस्ट हर, वो उसके अगेंस्ट हो गए. एंड ऑल्सो द नोबल्स डिड नॉट लाइक टू बी द वर्क अंडर द वुमेन. और लोगों जो नोबल्स थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लेडीज़ के अंदर काम करे. दैट्स द रीज़न दे रिवोल्टेड एंड सक्सीडेड इन डिपोजिंग हर. लास्ट में वो रिवोल्ट कर देते हैं और जीत जाते हैं और रजिया सुल्तान थ्रोन से हटा दी जाती हैं. द लास्ट इज गियासुद्दीन बलबन 1206 to 1287. Initially a slave of Iltutmish, Balban became very powerful noble in his court. He was one of the most powerful amongst the Chahalgan nobles. He used to look after the affairs of the Sultanate. Balban was a politician. He was a good politician. He crushed many rebellions. गियासुद्दीन बलबन जो 40 ग्रुप था जो चहलगानों का ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, उन्हीं का एक मेंबर था और ये सल्तनत पीरियड में बहुत शुरू से था और उनके वर्क को बहुत ही सिंसियरली देखा करता था और उससे उसने बहुत कुछ सीखा था. ही रूल्ड द एम्पायर विद एन आयरन हैंड. ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सजदा और नीलिंग बिफोर द किंग. इसने एक रूलिंग स्टार्ट की थी, प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, इसका नाम था सजदा, जहाँ पे लोग झुक कर अपने किंग को
सलामी देते थे। ड्रिंकिंग वॉज प्रोहिबिटेड, इसके टाइम में ड्रिंकिंग बिल्कुल मना था, प्रोहिबिटेड था। बलबन हैड अ गुड नेटवर्क ऑफ स्पाइस हु इन्फॉर्म हिम अबाउट एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसके अलावा इसके कोर्ट में बहुत से स्पाइसेस इन्होंने रखे थे, दूध बता रखे थे, जो डिटेक्टिव जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता था, वो इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को इसको इन्फॉर्म करता था। ही रिकॉग्नाइज द आर्मी एंड मैनेज टू क्रब द मंगोल्स अटैक। और इसकी बहुत अच्छी आर्मी थी और इसने मंगोल अटैक से भी बहुत बार दिल्ली सल्तनत को सेव किया था। बलबन डेड इन 1287, बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में। एंड हिज ग्रैंडसन द लास्ट रूल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज मर्डर इन 1290, और इसके ग्रैंडसन की मर्डर कर दी जाती है और 1290 में जो ये स्लेव डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी आती है खलजी डायनेस्टी इन ईयर 1290 to 1320. Jalaluddin Firoz established the Khalji dynasty in 1290. The most important ruler of the Khalji dynasty was Alauddin Khalji. जलालुद्दीन फिरोज ने एक खलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था इन ईयर 1290 में। जो ग्रैंडसन था बलबन का, उसकी डेथ करके उसको किल कर दिया था, मार दिया था, और एक नई डायनेस्टी रखी थी जिसका क्या नाम था, खलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन Firoz was not the very powerful because he was the only king who ascended the throne at the age of 70. जलालुद्दीन खलजी जो था वो 70 साल की उम्र में राजा बनने वाला पहला राजा था। He realized that India had a large Hindu population and could not be an Islamic state. He defended the policy of allowing Hindu to preach their beliefs and ideas. वो हिंदुओं की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था और वो जानता था कि जो ये कंट्री है इंडिया जो है वो हिंदू की कंट्री है, इसलिए हम हिंदू रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। बट आफ्टर हिज डेथ द नेक्स्ट ruler was Alauddin Khalji is year 1296 to 1316. Alauddin Khalji established a vast empire. His conquest of Gujarat gave him access to its ports and overseas trade. Alauddin also conquered Malwa and parts of Rajasthan. According to legal, he attacked Chittor, the capital of Mewar in Rajasthan, to capture Padmani, the beautiful queen of Mewar's ruler Ratan Singh. हम सब ने पद्मावत मूवी देखी, उसमें हमने अलाउद्दीन खलजी के बारे में भी देखा था कि उसने राजस्थान में मेवाड़ पे अटैक किया था टू कैप्चर द क्वीन पद्मनी। और लास्ट में क्या होता है कि जो पद्मिनी होती हैं वो क्या कर लेती हैं, जोहर कर लेती हैं, कमिटेड द जोहर, एंड एट लास्ट ही डिडंट गेट द क्वीन। अलाउद्दीन वॉज एन ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था मुस्लिम, एंड वॉज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन। वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो अपने रिलीजन को ही इम्पॉर्टेंट दे। ही प्लंडर्ड एंड डिमोलिश मैनी हिंदू टेम्पल, इसने बहुत से मंदिरों को तोड़वा दिया था और बहुत ज़्यादा डिमोलिश किया था, लूट मार भी की थी। मैनी हिंदूज़ वर फोर्स टू कन्वर्टेड टू इस्लाम, और बहुत से हिंदूज़ को फोर्सफुली मुस्लिम में कन्वर्ट भी किया था। अलाउद्दीन सेंट हिज कमांडर मलिक कफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम टू डेक्कन अंडर कंट्रोल। उसने उसको साउथ में भी भेजा और वहाँ से बहुत से राजाओं से उसने लड़ाई करवाई और उन सब को अपने एम्पायर में मिला लिया। फॉर अ ब्रीफ पीरियड अलाउद्दीन रूल ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया विथ मलिक कफूर एज अ वाइस रीजन। अलाउद्दीन खलजी ने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक यहाँ पे रूल किया और अपने एम्पायर को बहुत दूर तक फैला दिया। ही इंट्रोड्यूस अ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड फिक्स द प्राइजेस ऑफ ऑल एसेंशियल आइटम। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश सेपरेट मार्केट्स फॉर फूड ग्रेन्स, क्लोथ, हॉर्स फूड एक्सेट्रा। ही रिफॉर्म्ड वेरी मैनी थिंग्स, उसने बहुत से रिफॉर्म किए, जैसे न्यू मार्केट पॉलिसी लाया, हर चीज़ों की जो प्राइजेस थे वो फिक्स किए, सारे जो मार्केट्स थे वो सेपरेट किए, फूड मार्केट, हॉर्स मार्केट, इन सब को अलग अलग सेपरेट करके रखा। ही कंट्रोल टैक्स है, ये उसने टैक्स में भी कंट्रोल किया। एंड ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इंडिया, और उसने सबसे पहले आर्मी जो इंट्रोड्यूस की थी वो अलाउद्दीन खलजी ने ही की थी। ही रिकॉग्नाइज द आर्मी एंड डायरेक्ट अपॉइंटेड द सोल्जर, वो खुद अपने सोल्जर्स को अपॉइंट करता था। द सैलरीज वर गिवन इन अ कैश, और वो सभी को सैलरी क्या देता था, कैश में देता था। अलाउद्दीन वॉज वन ऑफ द एम्बिशियस बिल्डर्स ऑफ दैट टाइम। ही बिल्ड द अली दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, हज़रत सुल्तान और
हौज़े खास, बहुत सी बिल्डिंग्स का भी उसने कंस्ट्रक्शन कराया था। अलाउद्दीन वॉज वन ऑफ द फेमस एंड look at this, he built the Ali Darwaza, Siri Fort, Hazrat Sultan. He also built the magnificent tank Hauze Khas. He also a patron of art and learning. Amir Khusro, who is known as for his contribution to the literature and music, live in this कोट। हमने अमीर खुसरो का नाम जो ना जानते हैं हम सब लोग। ही वॉज अ गुड पोएट, वो इसी के कोर्ट में रहता था। I hope you understand both the dynasty, slave dynasty and Khalji dynasty. Next dynasty I will explain next video. Thank you class.